Dear students, let us discuss about our topic every drop counts. Okay, so let us start. Question number 1. Look at the area around your school. Okay, so you have to look around your school. School के चारों तरफ आप देखेंगे. Are there any fields, farms, पक्का roads, drains, etc. आपके स्कूल के चारों तरफ ये सब चीज़ है क्या? ओके, सो फाइंड द थिंग्स अराउंड योर स्कूल. ओके, सो इज द एरिया स्लोपिंग, रॉकी और फ्लैट? ओके, सो द एरिया ऑफ योर स्कूल इज रॉकी या फ्लैट? You have to say. Now think what will happen here when it rains. Here is a question that when it will rains, what will happen to that area? So think what will happen here when it rains. Then where will the rainwater go into the drains? So वो जो रेन वाटर कहाँ पर जाता है? ड्रेन, पाइप और पिट्स. इन सम वाटर also getting soaked into the soil. कुछ वाटर सॉइल के नीचे तक जाते हैं क्या? Okay, so you have to give your own answer. For example, I am giving you the answer. Yes, there are fields, pokka roads and drains near my school. The area is somewhat sloping. When it rains, जब ये रेन होता है, the rainwater easily goes. The rainwater easily goes. कैसे? इजी से चला जाता है into the drain and then to the nearby pond. After it goes to the nearby pond. जो nearby में पास में जो pond होता है वो pond को चले जाते हैं. Then question number 2. How do you think the rainwater that falls on the roof will reach the underground tank? Draw the path. So here you have to draw a path just like this image. You have to draw this image in your copy. Okay, so what to draw? The water from the roof goes to the pipe. You have to say that after the raining the water comes to this roof, then from this roof the water goes to underground like this. Okay, so you can use this water at any time in the year. Okay, so the water from the roof goes to the pipes. These pipes carry the water to the underground tank. Next question, question number 3. Have you ever faced a shortage of water in your area? Okay, आपको कभी वाटर का शॉर्टेज महसूस हुआ है क्या? Is there any shortage of water in your area? Okay, you have to collect this answer from your home. If yes, then what was the reason for it? अगर आपका आंसर yes है तो you have to say the reason why there is a water shortage in your area. Okay, you have to write your own answer. Here, for example, yes, we do face a shortage of water in my area. This usually happens because of erratic supply from the Jal board. Okay, talk to your grandmother or any elderly person. Find out when they were of your age. Okay, so आप अपने घर से जो बुजुर्ग हैं उन्हें पूछेंगे कि उनके ज़माने में वाटर का शॉर्टेज हो रहा था क्या? अगर हो रहा था वो क्यों हो रहा था? देन क्वेश्चन नंबर 4. फ्रॉम वेयर डिड दे गेट वाटर फ्रॉम द हाउस? ओके, वो हाउस को कहाँ से पानी लाते हैं? हैज़ देयर बीन ए चेंज नाउ? अब उनके जो आपके ग्रैंडमदर के टाइम में कैसे पानी वो लाते थे? हाउ दे यूजेस द वाटर? And you have to compare with your grandmother time. Okay, so from where did they get water for the house? Has there
बीन ए चेंज नाउ, अभी कोई चेंज हुआ है क्या? सो दे यूज टू, आंसर इज दे यूज टू गेट वाटर फ्रॉम नियर बाय रिवर, पॉन्ड्स, वेल्स, बाब्दिस और हैंड पम्प्स. द सिचुएशन हैज चेंज नाउ, वी गेट वाटर थ्रू पाइपलाइन ऑफ द जल बोर्ड. अब हमें पानी कैसे मिलता है? थ्रू द जल बोर्ड. ओके. So question number 5. What kind of water arrangement were made for travelers? For example, pav, masak or any other. Now, what do people do about water when they travel? So, you know, dear students, so when people are traveling from one place to another place, okay, so water is necessary to them. So, how their necessity of water is fulfilled? Let us discuss. Your answer is earlier kings and rich merchants used to build well for travelers. Okay, so drinking water was served for free at these wells. So drinking water was free में दिया जाता है. Okay, so मशक was used for carrying water. So मशक क्या होता है? मशक का यूज़, अब हम जैसे प्लास्टिक बॉटल में वाटर को कैरी करके लेते हैं, जस्ट लाइक दैट दे यूजेस मशक. नाउ डेज पीपल कैरी बॉटल वाटर व्हेन दे ट्रैवल. ओके. सो नेक्स्ट, इज देयर ए लेक, वेल और स्टेप वेल नियर योर हाउस और स्कूल? आपके घर के पास कोई स्टेप वेल है क्या? आप ये लिखेंगे, अगर है तो येस लिखेंगे, अगर नहीं है तो नो लिखेंगे. सो विजिट इट, अगर है आप वहाँ पे विजिट करेंगे एंड फाइंड आउट मोर अबाउट इट, उसके बारे में आप थोड़ा जानने के लिए कोशिश करेंगे और जो जानेंगे आप अपना कॉपी में लिखेंगे. क्या क्या? हाउ ओल्ड इज, ये कब बना था? आपके घर में पास अगर कोई है पुरानी लेक, वेल, स्टेप वेल, आप ये लिखेंगे. हु गॉट इट बुल, ये किसने बनाए हैं? ओके. सो लुक एट हियर. What kind of building are around it? ओके. सो कौन सा बिल्डिंग है? वो जो आपने देखे वो सोर्सेस ऑफ वाटर जस्ट लाइक लेक, आपके घर के पास जो है स्टेप वेल, उसके आसपास कोई बिल्डिंग है क्या? ओके. ये लिखेंगे, अपना खुद का आंसर लिखेंगे. ओके. आपके घर के पास अगर है तो लिखेंगे, वरना नो लिख देंगे. इज द वाटर क्लीन, अगर आपके पास वो स्टेप वेल में पानी मिलता है, वो वाटर क्लीन है क्या और क्लीन नहीं है? हु ऑल यूज द वाटर, वो वाटर को कौन यूज करते हैं? ओके. देन क्वेश्चन नंबर 5, इज देयर एनी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट दिस प्लेस? ओके. सो आपके घर के पास जो पानी का सोर्सेस है, वो पानी का सोर्सेस में कुछ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड होता है क्या? ओके. यू हैव टू राइट हियर. Now question number 6, is there any water today or it is dry? Okay, वहाँ पर अभी पानी है या पानी नहीं है? You have to write. Now there are 2 old wells in the area where Punita lives. Okay, Punita is a student like you, and where she lives, there are 2 old wells. Her grandmother says that about 15-20 years ago there was water in these wells. The wells could have dried up. So जो वेल में 15-20 साल से पहले वहाँ पर पानी था, लेकिन अब पानी नहीं है. So here is the question. हाँ, why we have to find the reason, कि कौन सा रीजन से वहाँ पर अभी पानी नहीं है? द वेल कुड हैव ड्राइड अप बिकॉज वाटर इज बीइंग पम्प्ड अप फ्रॉम अंडर द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर. सो इट मे बी ए रीजन. वाटर इज पम्प्ड अप फ्रॉम द अंडरग्राउंड से पानी हम मोटर के सहारे, इलेक्ट्रिक मोटर, बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक मोटर वी ड्रॉ द वाटर फ्रॉम अंडरग्राउंड. Okay, so the lake in which rainwater used to collect are no longer there. So जो लेक्स आसपास था जहाँ पर रेन वाटर कलेक्शन होकर रहा था,
वो अभी नहीं है. It may be a region. And the soil around trees and park is now covered with cement. Okay, it is also a region. Okay, trees and park, it is also important to connect with underground water. Okay, so is there some other reason for this? And explain. अगर कुछ और रीजन है हमें एक्सप्लेन करना है. So look at here. Apart from regions, after from regions given here above, there can be some other regions also. Almost all the trees are been cut. Okay, so वो जो ट्री थे सारे ट्री को काट दिया गया है. For that region the water becomes less. The well is not being maintained. Now let us see the different ways in which people manage water today. So you have to look the different ways through which the people manage water. See the picture and discuss. Do you get water hat? If you get in your house by any of these ways, put a tick by some other way. Write in your notebook. हम नोटबुक में क्या लिखेंगे? अभी हम लिखेंगे कि वो पानी हम कहाँ से पाते हैं. So we get water from jal board. We have connected motor with the supply line. Okay, आजकल क्या करते हैं हम जो जल बोर्ड से जो वाटर पाइप कनेक्शन हमें मिलता है वहाँ पे हम मोटर लगा देते हैं और वो motor से with the help of the motor we stores the water in on the roof, and after that we can use that water in the whole day. This helps us in storing water in rooftop tank. The slum area near my house gets water from the jal board tanker. Okay, so jal board का टैंकर भी आता है कहाँ पर? स्लम एरिया में, which comes once in a day. Okay, so in my grandfather's village there are some hand pumps which draw underground water. So कुछ हैंड पम्प्स भी हम यूज करते हैं जो अंडरग्राउंड वाटर को ले आते हैं. Okay, so I have seen some ladies in the village bringing water from the nearby canal. So canal is just a source of water and we can get water from from canal. Okay, next, everyone has the right to live, yet is everybody getting enough water to live or even water to drink? Why is it that some people have to buy drinking water? So it is a question that in this world everyone has the right to live. सबको जीने का अधिकार है, लेकिन क्या होता है कुछ लोग को ज़्यादा पानी मिल जाता है और कुछ लोग को पानी बिल्कुल नहीं मिलता है. So you have to know the reason why it has happened. Let us discuss. Should it be like this? ये होना चाहिए. Water on the earth is for one and all. So water जो underground है वो सबके लिए है. Some people draw out water from the ground by deep borewell. So कुछ लोग deep borewell करके पानी निकल लेते हैं. So how far it is correct? Is it correct? ये ठीक है क्या? How have you ever seen this? आप ये देखे हैं क्या? Why do some people put a pump directly in the जल बोर्ड पाइपलाइन? So जल बोर्ड पाइपलाइन में पंप लगाना नहीं चाहिए क्योंकि वो पानी दूसरों को नहीं मिलेगा. What problem would other people face due to this? Okay, so due to this, what other problems occurs? Do you have any such experience? आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है तो आप लिखेंगे, आप अपना कुछ आंसर खुद लिखेंगे. ठीक है. Now look at the bill. So look at here. This is a water bill, and from this water bill we have to give answer. So from which board
फ्रॉम हुइच ऑफिस हैज दिस बिल कम, ये बिल कौन सा ऑफिस से आया है? द बिल हैज कम फ्रॉम दिल्ली जल बोर्ड, ये जल बोर्ड होगा। ओके, आप यहाँ पर लिखेंगे जल बोर्ड। ओके, जल बोर्ड। ओके, आप क्या लिखेंगे? जल बोर्ड। जल बोर्ड से हमें ये मिला है, सो इट इज आवर जल बोर्ड। नाउ डू यू गेट ए वाटर बिल एट होम? आपके घर में एक वाटर बिल है क्या? अगर है, आप क्या करेंगे? फाइंड आउट फ्रॉम वेयर इट विल से। आपके घर में अगर एक वाटर बिल है, आप ढूंढेंगे, अगर मिलेगा आप वहाँ पर देखेंगे वो वाटर बिल कहाँ से आया है। डू यू थिंक गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली इज रिटेन अंडर द दिल्ली जल बोर्ड? देखो हम देखेंगे अभी वो, देखिए यहाँ पे लिखा है दिल्ली जल बोर्ड। ये क्यों लिखा है? क्योंकि जो हमें वाटर सप्लाई मिलता है दिल्ली में, जो मिलता है वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर है। सो दिल्ली जल बोर्ड इज ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली एंड दिस इज व्हाई गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली इज रिटेन अंडर द दिल्ली जल बोर्ड। दिल्ली जल बोर्ड के नीचे गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली लिखा है। ओके, सो क्योंकि वो जल बोर्ड दिल्ली गवर्नमेंट का ही पार्ट है, दिल्ली में जो पानी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हुच नेम इज द बिल? हाउ मच मनी डू दे हैव टू पे फॉर ईच मंथ? ओके, लुक एट दिस बिल। हम बिल देखेंगे, आंसर देंगे। देखिए बिल के ऊपर किसका नाम लिखा है? लुक एट हियर, नेम इज हियर। ओके, श्री मोहम्मद उमर एंड डॉक्टर मोहम्मद शोएब, एंड टोटल मनी इज 350, around 350 and 18 for maintenance, 350 for 2 months। 2 months किससे पता चला मुझे? यहाँ पर देखिए 7 month से 9 month तक, 7, 8, 8, 9। ओके, 2 month हो रहा है, 2 month के लिए 350। ओके, नाउ इन हुच नेम इज दिस इज द बिल? हाउ मच मनी डू दे हैव टू पे फॉर ईच मंथ? The bill bears the names of Muhammad Umar and Dr. Muhammad Shoaib. The bill amount to rupees 350 for 2 months and hence they have to pay how much? अगर 2 month के लिए 350 है, 2 month के लिए कितना? 2 month के लिए कितना हो रहा है? 350। So 1 month के लिए क्या होगा? 350 डिवाइडेड बाय व्हाट? 2। 350 डिवाइडेड बाय 2, आंसर विल 175। ओके, सो हेंस दे हैव टू पे रुपीज 175 फॉर ईच मंथ। सो डू यू हैव टू पे फॉर वाटर? आप वाटर के लिए पे करना पड़ता है, आपको पैसा देना पड़ता है पानी के लिए। हाउ मच? अगर पड़ता है तो कितना पड़ता है? इज द रेट ऑफ द वाटर डिफरेंट इन डिफरेंट कॉलोनीज? सो जैसे कि राणाघाट में जितना पैसा हम दे रहे हैं कोलकाता में ज़्यादा होगा, तो जैसे कि एरिया डिफरेंट करता है ये रेट। ओके, डिफरेंट इन डिफरेंट कॉलोनीज। आस्क योर एल्डर, आप घर में पूछेंगे और ये आंसर आप खुद लिखेंगे। हैव यू एवर रीड दिस काइंड ऑफ न्यूज़ इन एनी न्यूज़ पेपर एंड हाउ डिड पीपुल सॉल्व देयर प्रॉब्लम ऑफ वाटर? सो आपको तो पता है वाटर का शॉर्टेज बहुत जगह पर है, वो कैसे पानी का चाहत कैसे मिटाते हैं। डिड दे रिपेयर और रीयूज एनी ओल्ड लेक और स्टेप वेल? ओके, सो वो पानी को कैसे यूज़ करते हैं? देखिए हम दिखा रहा हूँ, बुक में है। ओके, सो लुक एट हियर, देयर आर सम ग्रुप दैट वर्क्स हार्ड टू ब्रिंग वाटर टू द पीपल
of different area. They asked the elder about the water arrangement in their time. Okay, so they rebuilt the old lakes. वो क्या करते हैं, ओल्ड लेक को बनाते हैं फिर से, and johars, and also built new ones. Let us see how the group called Tarun Bharat Singh helped डरकी माई. ओके, डरकी माई को वो कैसे हेल्प किए. ओके, सो लुक एट हियर, दिस इज डरकी माई. शी लिव्स इन ए विलेज इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. राजस्थान का एक अलवर डिस्ट्रिक्ट में वो रह रहते हैं. व्हाट हैपेंड टू हिम, व्हाट हैपेंड टू हर? लुक एट हियर, द वोमेन ऑफ द विलेज यूज्ड टू स्पेंड द एंटायर डे लुकिंग आफ्टर देयर होम एंड एनिमल. सो पानी के लिए वो एक दिन टोटल स्पेंड करना पड़ता है. समटाइम्स इट टुक्स देम ऑल नाइट टू पुल वाटर फ्रॉम द वेल फॉर द एनिमल. एनिमल के लिए पूरा नाइट, ऑल नाइट भी उन्हें पानी जुगाड़ करना पड़ता है. सो इन द समर व्हेन द वेल्स ड्राइड अप, समर में क्या होता है, सारे पानी सूख जाता है. देन व्हाट हैपेन, दे हैड टू लीव द विलेज. वो गांव को वो छोड़ना पड़ता है उन्हें. डरकी माई हियर्ड अबाउट दिस ग्रुप एंड आस्क्ड फॉर हेल्प. सो ये ग्रुप के बारे में उन्हें पता चला और वो हेल्प मांगे. ओके, सो टुगेदर द पीपल फ्रॉम द ग्रुप एंड द विलेज डिसाइडेड टू मेक ए लेक. क्या डिसाइड किए कि वो गांव में एक लेक प्रस्तुत करेंगे. The problem of the food and the water for animal is now less. So now there is no problem. So the problem of food and water for animal is now less. So people get more milk. People को ज़्यादा मिल्क भी मिलता है. So they have started earning more. अभी वो ज़्यादा कमाना शुरू किए हैं. So what is your question? लुक एट हियर. सो आपको भी ये न्यूज़पेपर से कुछ ऐसे पानी के बारे में कुछ खबर मिला है? अगर मिला है आपको ये कॉपी में लिखना है. हैव यू एवर रीड दिस काइंड ऑफ न्यूज़ इन एनी न्यूज़पेपर? हाउ डिड पीपल्स सॉल्व देयर प्रॉब्लम ऑफ वाटर? वो वाटर का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं? सो डिड दे रिपेयर एंड रीयूज एनी ओल्ड लेक और स्टेप वेल? सो क्या वो जो पुराने लेक है, स्टेप वेल है, वो उसको रिबिल्ड किए हैं क्या? नेक्स्ट, मेक ए पोस्टर. आपको एक पोस्टर बनाना है. डू यू रिमेंबर द स्लोगन, वाटर ऑन अर्थ इज फॉर वन एंड ऑल? इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में जितना भी पानी है, जितना भी वाटर है, जितना भी जल है, वो सबका अधिकार वो वाटर में है. सो थिंक ऑफ सम अदर सच स्लोगन. ड्रॉ पिक्चर ऑफ मेक नाइस पोस्टर. आप ऐसे एक पोस्टर बनाएंगे, ठीक है? सो देखो, द वर्ल्ड इज इन योर हैंड, सेव वाटर. सो ब्रिंग ए वाटर बिल. आपके घर में एक वाटर बिल होगा, वो बिल को आप लाएंगे. लुक इट एंड टेल. वो बिल को आप देखेंगे, क्या लिखेंगे? दिस बिल इज फ्रॉम डेट टू व्हिच डेट? वो कौन सा डेट से कौन सा डेट तक है, आपको लिखना है. हाउ मच मनी इज टू बी पेड फॉर दिस बिल? वो बिल आप देखकर लिखेंगे कि आपको कितना पैसा देना पड़ रहा है. नेक्स्ट, व्हाट एल्स कैन यू सी इन द बिल? लाइक द मनी स्पेंट ऑन रिपेयर, मेंटेनेंस एक्सेट्रा. सो देखो, जैसे कि हमें और कुछ देना पड़ता है मेंटेनेंस के लिए भी. पानी का तो बिल देते हैं और मेंटेनेंस चार्जेस भी देना हमें पड़ता है. आप देखेंगे आपका बिल में कितना लिखा है, आप वो लिखेंगे. सो इट इज़ ऑल अबाउट अवर टॉपिक. एवरी ड्रॉप काउंट्स. ओके, यू हैव टू सेंड योर होमवर्क. ओके, वेरी गुड, थैंक यू.